جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ بڑی لاٹری نکلی ہے، بلاول بھٹو زرداری کی بڑی ہی اہم ترین خبر ہے یہ۔ اور لڈیاں بھاجی جدو ایڈی وڈی لاٹری نکلے تو پھر جشن تے منائے جاندے آ، جشن منایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہمارے چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، جسٹس فائز عیسیٰ، وہ گئے، وہ چلے گئے۔ اس حوالے سے بھی بڑی اہم ترین خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور فلک جاوید کا ایک بڑا فراڈ، وہ صنم جاوید کی بہن، وہ پکڑی گئی ہے۔ اور عمران ریاض، وہ جو گیلا تیتر جسے کہا جاتا ہے، مطلب ہے اسی نمازاں بھی پڑھنی ہے تے اسی جھوٹ بھی بولنے ہیں، اور اسی بڑے ایسے فراڈ کرنے ہیں کہ جو دوسرا بندہ سوچ بھی نہ سکے، تصور بھی نہ کر سکے۔ اس حوالے سے بھی بہت اہم ترین خبریں ہیں۔ اور فلک جاوید اور عمران ریاض کیسے پکڑے گئے یہ سب اس ولاگ میں ہے، لیکن ان ساری باتوں سے پہلے ایک گزارش چھوٹی سی کہ اگر دل کرے، سیدھی بات ہے، ویسے آپ کو ریکویسٹ کرنے کا فائدہ تو نہیں ہے کیونکہ آپ نہ کسی کی ریکویسٹ مانتے ہیں، نہ کسی کی منت سماجت مانتے ہیں، نہ کسی کا ترلا مانتے ہو۔ اگر دل کرے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہیں بس اتنی سی بات۔ آگے آ جاتے ہیں خبروں کی طرف۔ عظمہ بخاری جو منسٹر ہے پنجاب کی، انفارمیشن منسٹر ہے، زاد بخاری صاحب کی بیٹی، ان کی فیک ویڈیو بنائی اور چلائی فلک جاوید نے سوشل میڈیا پر۔ انہوں نے کیس کر دیا، ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے، اور ایف آئی اے تفتیش بھی کر رہی ہے۔ اور فلک جاوید نے معافیاں شافیاں بھی مانگی مریم جاوید سے اور مریم نواز شریف سے کہ سانو معاف کر دو، اسی یہ نہیں کیتا، اسی قرآن تے بھی حلف دینے ہیں۔ مطلب قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر ویڈیو بنا کر اور اس نے سوشل میڈیا پر ڈالی، لیکن وہ کہیں کہ نہیں، اسی تیری کروانی ہے پوری دی پوری تفتیش۔ اور تفتیش تو تب بھی بڑی مکمل ہو جانی تھی جب کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈا پور گئے اور پیچھے رینجرز گئی اور پولیس گئی، اور ایک کمرے سے فلک جاوید بھی برآمد ہوئی کے پی ہاؤس اسلام آباد کے کمرے سے مبینہ طور پر، لیکن افراتفری کے اس ماحول میں وہ نکل گئی نا، کسی پاس سے ہاتھ نہیں آئی۔ اسی دن ان کے والد صاحب جو ہے نا جاوید صاحب، وہ پیٹ رہے تھے جاوید اقبال صاحب کہ میری کڑی صنم جاوید، یہ تو فلک جاوید کی بات ہے نا، صنم جاوید جو جیل میں بھی رہی ایک عرصہ، اور جس کی ماں کہہ رہی تھی کہ میں کوئی چنگیز خان جم لیا ہے یا میں ایک نکی جی کڑی جمی ہے 5 فٹ دی۔ صنم جاوید کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ اس کے گرد اتنی پولیس ہے، انیاں پولیساں ہی پولیساں، میں کیڑا ڈاکو جم بیٹھی ہوں۔ وہ جاوید اقبال صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوں، لیکن اس کی بیٹیاں مطلب بڑے انوسینٹ بنتے ہیں نا جاوید صاحب، اور ان کی بیٹیاں جو گل کھلا رہی ہیں نا، کمال و کمال کری جا رہی ہیں۔ وہ جس دن گنڈا پور والا معاملہ ہوا، کے پی ہاؤس والا معاملہ ہوا، اور رینجرز آئے اور یہ وہ، اور قافلہ تتر بتر ہوا گنڈا پور کا، تو اس دن وہ سوشل میڈیا پہ رو رہے تھے کہ میری بیٹی صنم جاوید علی امین گنڈا پور کے قافلے کے ساتھ آ رہی تھی پشاور سے، لیکن اب وہ لاپتہ ہے، مل نہیں رہی، کہاں ہے۔ دیکھ لو ایک کڑی کی ایک پاسیوں علی امین گنڈا پور دے موڈیاں تے، دوسری موڈیاں تے تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب اس کے امبریلے نیچے، اور دوسری طرف سے اس کے ساتھ ساتھ ہے قدم با قدم، نہ اپنا خیال، نہ بچیاں دا خیال، نہ گھر دا خیال، نہ کوئی یہ وہ۔ سیاست ہے بھائی، سیاست ہو رہی ہے۔ اور وہ جاوید اقبال صاحب جو ہے نا، بڑے معصوم سے بن کر چینلز پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ مختلف پوڈ کاسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا شریف زیادہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہاں کی گول کھلانیاں پھر دیاں، اے ویکھو ذرا۔ عظمہ بخاری نے بتایا کہ وسن پورہ جو لاہور کا ایک ایریا ہے،
वहाँ फलक जावेद के हस्बैंड की एक फ्रेंचाइज है जोंग की। जोंग सिम कार्ड जो होते हैं, जैसे जैज़ है, जैसे टेलीनॉर है, इसी तरह से जोंग है, बड़ा पॉपुलर है, उसकी फ्रेंचाइज है। और उस फ्रेंचाइज से 500, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 400 नहीं, 500 सिम कार्ड फलक जावेद के नाम से इशू हुई हुई हैं, और 500 ही सिमा उनके बंदे के नाम तो जारी हुई हैं। अच्छा, ये किस तरह से ये फ्रॉड होता है? अब मतलब नाजरा को किस तरह से ये धोखा देते हैं, पहली बात तो सोचने वाली ये है। और ये जो इंक्वायरी की तफ्तीश कर रही है FIA, ये उसकी रिपोर्ट है कि 500 इनके नाम से सिमा इस बीबी के नाम से, और 500 ही इस बंदे के नाम से सिमा जारी हुई हैं। और यही वो सिमें हैं, अस्मा बुखारी ठीक कह रही है कि यही वो सिमें हैं कि इनके थ्रू सोशल मीडिया पर गंद डाला जा रहा है, फितना फसाद की दावत दी जा रही है, पहुंचो, निकलो, ये करो, वो करो। और ये एक नया जो नेटवर्क सामने आया था इस्लामाबाद से, एक वो धान पान सी लड़की पकड़ी गई थी एक हॉस्टल से, कि वो कितने लाख अकाउंट अकेली चलाती है। इसी तरह से ये सिमें जो हैं, एक ही दफ़ा मतलब इस पर जो जो ट्विटर अकाउंट बने हुए हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स दीगर बने हुए हैं, फेसबुक या दूसरे तीसरे, एक ही जब आपने इस पे करनी है ना, वो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं आए हुए कि एक ही आपने जब इस पे ट्वीट करना है तो वो 500 जो सिमें हैं, 500 जो अकाउंट्स हैं इन सिमों पर बने हुए, उन पर ऑटोमेटिकली 1 मिनट से पहले पहुंच जाना है। कैसा है? और फिर रौला तो पै जाता है ना कि फड़ लो हो गई, पता नहीं कितों आ गया, इन्ने मैसेजेस, इन्ने सारे व्यूज कितों आ गए, और ये क्या हो गया और वो क्या हो गया। ये सारे का सारा ड्रामा जो हो रहा है ना, ये 5th जनरेशन वार और सो कॉल्ड 5th जनरेशन वार, और इनकलाब, और तब्दीली आ नहीं गई, तब्दीली आ रही है, इनके पीछे बड़ियां कहानियां भाजी। और एक एक कहानी फरोलो तो इंज लगता है कि इनके विच 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार कहानी एक कहानी के अंदर, जैली कहानियां। समझ से बाहर है कि ये किस तरह से और किस अंदाज से इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। और एक तरफ फलक जावेद रूपोश है, दूसरी तरफ उसका बंदा भी नहीं लभन रहा, और जोंग वाला ना फ्रेंचाइज वाला वसनपुरा, वो भी नहीं लभन रहा, मतलब वो भी किधरे अगे पिछे आ। जो करतूत इहो जिहा करने आ तो फिर कौन लभदा है, सीधी बात है। अच्छा, ये जो काला तीतर जिसे नाम दिया था उसने, जो नया नया यूट्यूबर हुआ है असद अली तूर, उसने इमरान रियाज को नाम दिया था काला तीतर का, क्योंकि इसने बेदर्दी के साथ हजारों तीतर मारे, सैकड़ों तीतर मारे, और अपनी गाड़ी पे रख के उनकी नुमाइश कर रहा था, नाल नमाज़ां पढ़ी जाते हैं, नाल पता नहीं केड़ी केड़ी हरामजदगी करी जाते हैं। वो बड़ा पॉपुलर हुआ था वो सारा मामला, आप सब ने देखा। तो तब उसने नाम रखा इसका कि काला तीतर है, ये गीला तीतर, सॉरी काला तीतर नहीं, गीला तीतर। और ये गीला तीतर उसका नाम ही पड़ गया। पिछले दिनों वो उसने खुद इकरार किया कि वो, मतलब अपने व्लॉग में इकरार किया, उमर चीमा सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे मुल्क का, उससे फोन पर भी उसने बात करते हुए इकरार किया कि वो पेशावर गए थे जब अली अमीन गंडापुर बरामद हुए KP असेंबली में, तो नसिया गड्डी काटो, छेती चलिए होए, पेशावर चलिए होए, ये करिए वो करिए, मैं मौके पे पहुंचना, मैं गंडापुर नूं तसल्ली कराना है। तो ये पेशावर गए थे मौसूफ, और इन्होंने जाके इंटरव्यू फरमाया था अली अमीन गंडापुर का, और फिर सुनने में ये आ रहा है कि ये वहाँ इमरान खान बन गए, इमरान रियाज खान की बजाय हैंडसम बन गए, दक दक होकर कैदी नंबर 804, झाड़े पिलाना शुरू कर दी अली अमीन गंडापुर को कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने कमर तोड़ के रख दी तहरीक की, तूने PTI तबाह कर दी, ये है वो है। तो जो अली अमीन गंडापुर है उसने इसे समझाया कि तमीज से बात करो,
ये बास नहीं आया, और ऊपर, क्योंकि ये टक्कर के लोग हैं ना, वो कहता है हम टक्कर के लोग हैं। तो अली अमीन गंडापुर का जो स्टाफ है या जो लोग बैठे हुए थे, ये वजीर आला हाउस का वाकया है। उन्होंने भी समझाया कि इमरान रियाज बंदे का पुत्र बन की करन दिया, ये बास नहीं आया तो किसी ने इसको एक थप्पड़ मारा उन लोगों में से। लेकिन फिर गंडापुर साहब खुद उठ के खड़े हुए और उन्होंने मारना शुरू कर दिया, और मार मूर के जलील करके वजीर आला हाउस से निकल जाए तो तुर जाए तो फलानिया टमकानिया। उमर चीमा ने जब पूछा कि क्या इस तरह का कोई वाकया हुआ है, तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरी गंडापुर नाल तो कोई लड़ाई नहीं हुई, मेरी लड़ाई हुई थी बैरिस्टर सैफ से, जो तर्जमान है पेशावर हुकूमत का, केपी हुकूमत का, अली अमीन गंडापुर का, उसके साथ लड़ाई हुई थी वजीर आला हाउस में। और लड़ाई इस बात से हुई थी कि मैंने उसे कहा तूने जयशंकर को कि क्यों कहा है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कि वो आए और पीटीआई के जलसों से खिताब करे, और यहाँ शर फैलाए हम लोग, ये इस तरह की बात तूने क्यों की है। इस पर हमारी लड़ाई हुई, लेकिन असी किसों मुक्की तो नहीं सी होए, चपेड़ा नहीं सी उन्हें मैंने मारियां। अली अमीन गंडापुर ने बाद में हमारी सुलह करवा दी। उमर चीमा ने उसके बाद फोन किया बैरिस्टर सैफ को। बैरिस्टर सैफ से उसने पूछा कि इस तरह से तुम्हारी कोई इमरान रियाज के साथ कोई लड़ाई हुई है, कोई थप्पड़ शप्पड़ मारे हैं आपने उसे। तो बैरिस्टर सैफ ने कहा कौन इमरान रियाज, मैं नहीं जानता। अच्छा वो जो एक्सप्रेस में होता था, नहीं भाई मेरी तो उससे मुलाकात भी नहीं हुई, तो लड़ाई वाली कौन सी बात है, ये बैरिस्टर सैफ ने कहा। और अब हर तरफ से ये बात पक्की हो रही है कि इसे वहां गंडापुर ने खुद मारा, क्योंकि ये बाज नहीं आ रहा था, ये इमरान खान बनकर उसे झाड़े पिला रहा था, उसे दबके शबके मार रहा था। अखीर उन्हें उठ के फिर फड़ लिया। अच्छा, ये भी पकड़ा गया है, उन्हें भी फड़ लिया सी जलील करके केपी हाउस, तो उन्हें वजीर आला हाउस तो उन्हें बाहर कर देता सी। अब फिर पकड़ा गया है कि ये जो व्लॉग करता है, जो मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इसके, जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट ने इसे करवा के दिए हुए थे, वो जाहिर है इतने सब्सक्राइबर्स हों तो रोज बढ़ते रहते हैं। और आधे घंटे में उसका व्लॉग जो है कई लाख व्यूज क्रॉस कर जाता है। मतलब सब्सक्राइबर्स ही नहीं यार, चैनल ही एडा बड़ा होया है। उसने अपने चैनल पर अपने व्लॉग में कोई बहुत पुरानी वीडियो उठाकर डाल दी इन्हीं क्राइसिस के हवाले से, और उसे आज के साथ जोड़ा कि ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, और सोशल मीडिया ने उन्हें फड़ लिया और पकड़कर वो जलील कर रहा है सोशल मीडिया उसे, कल से आज तक, जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये तो इनके हालात हैं, थां से फड़े जाते हैं और साथ इस्लामिक टच जरूर देते हैं। मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठा हूँ, आपके लिए व्लॉग करने लगा हूँ, मैं मगरब की नमाज के बाद मजहब नाल दसना होता है कि असी बड़े नमाजी परहेजी हैं, और साथ ये भी बताना होता है कि हम इतने बड़े, मतलब वो तो इनका किरदार बताता है कि ये कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े फ्रॉडिये हैं, कितने बड़े ये साजिशी हैं, कितना बड़ा ये फितना है। इस तरह के लोग हमारे मुल्क के अंदर, और ये फितना कुचलते कुचला जाएगा, सीधी बात है। इतनी जल्दी मतलब आराम नहीं आने वाला। और बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं, सच्ची बात है, जो यूट्यूबर्स बने हुए हैं, इमरानडूज बने हुए हैं, जो अपने मुंह से कहते हैं कि यार सानू इमरान खान नाल कोई गरज नहीं, रत्ती भर सानू उहदे नाल मुहब्बत नहीं, रत्ती भर असी उसके नजरिए नाल नहीं खड़े। लेकिन चूंकि इमरान खान की फेवर में इनकलाबी किस्म के व्लॉग करने से व्यूज आते हैं, साडा कारोबार चलता है, 80 ਲੱਖਾਂ रुपया कमा रहे हैं, इसलिए असी इमरान खान करी जा रहे हैं। अंदरों असी उसदे नाल नहीं, जमीर सानू साडा मुलामत करता है, चपेड़ा मारदा है, लेकिन की करिए, पैसा वो आंदा है।
तो भाईजान ये इनके करतूत हैं। अब आ जाए बिलावल भुट्टो की तरफ। तो खुर्शीद अली शाह पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं, उनकी सरबराही में इजलास हुआ है आईनी तरामीम के हवाले से, और वहाँ एक बड़ी लॉटरी जो है ना वो बिलावल भुट्टो की निकली है कि हर तरफ से उसे शाबाशी थी कि इन्नियां सारियां मुलाकातां पीटीआई के लीडर से जाके पीछे नमाजें भी पढ़ते रहे फजल रहमान के, लेकिन ये बिलावल अकेला ही जो है ना ये मौलाना फजल रहमान को उठाकर यहाँ ले आया है। और मौलाना फजल रहमान एग्री हैं अपनी कुछ शराइत के साथ कि ये आईनी तरामीम हमने करनी है। हुण भाजी गल ये आ कि ये आईनी तरामीम तो होंगी, सीधी बात है। और जो लोग कह रहे थे मौलाना फजल रहमान वोट नहीं देगा, उन्होंने मतलब उन्होंने वास्ते की है यार, की गुफ्तगू उन्होंने ते की जा सकती है। और जो लोग भाग भाग के कह रहे थे, कल कह रहे थे डीजल, मौलाना डीजल, और इनका लीडर वो खड़ा होके जलसों में मौलाना फजल रहमान की ना सिर्फ तंबी उतारता था बेचारे की, शरीफ आदमी की, मतलब तंबी का लफ्ज गैर अखलाकी है, मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब पगड़ी उछालता था, और साथ ही डीजल 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 का एक विर्द था जो ये पूरे ना बैठ के पूरे जलसे में करते थे। और ये जो महमूद अचकज़ई है जिसे आगे लगाया हुआ है इन्होंने, अब कैसे सर पे कपड़ा रखकर बुक्कल मारकर इमरान खान जलसों में उस बेचारे बुड्ढे की नकलें उतारता था, आपको पता ही है ना। ये बिलावल भुट्टो को बहुत सारा क्रेडिट दिया जा रहा है इस अचीवमेंट का कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान आईनी तरामीम पर राज़ी हो गए हैं, और बहुत जल्द ये आईनी तरामीम हो रही हैं। और एक गल होर मैं तुहानूं दस्सां, सीधी सीधी अगर आईनी तरामीम हो जाती है ना तो फिर केड़ा मंसूर अली शाह, काजी एक बहादुर आदमी है, उसने हर तरह के हालात फेस किए, लेकिन उसने कमिटमेंट की कि मैंने रिटायर होना है, मैं एक्सटेंशन नहीं लैनी। वो जा रहा है, आराम नाल जा रहा है। और बिलावल भुट्टो के हवाले से यही मतलब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी, और जो मतलब जो मेच्योर दानिशवर हैं हमारे मुल्क के, मेच्योर जर्नलिस्ट हैं, मेच्योर लिखने वाले हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह की अचीवमेंट्स ये कर रहा है ना अपने बाप के बाद, पहले तो उसे कहा जाता था ना मर्द आहन, कि वो एक जरदारी सब पे भारी, अब बिलावल भी भारी हो रहा है सब पर। और फ्यूचर का वजीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी है, फ्यूचर रब को पता है, रब भी जानता है। और आप दोस्त अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये मुझ पर एहसान होगा। अल्लाह हाफिज़।